महिंद्रा ट्रांसपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड्स 2014। ये सेलिब्रेशन है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की कामयाबी का, उनके सुनहरे भविष्य की उम्मीद और बेहतर करने के जज्बे का। एक शाम जहां सपने हकीकत में बदले, जहां टैलेंट को मिली सही पहचान। महिंद्रा की इस कोशिश को मिला पॉलिसी मेकर्स से लेके इंडस्ट्री के सभी सेगमेंट्स का पूरा साथ। अवार्ड सेरेमनी की शुरुआत खास टाउन हॉल सेशन के साथ हुई। महिंद्रा ट्रांसपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी 2014 के इस खास सेशन में मैं रोहित सरदाना आप सबका स्वागत करता हूं, जहां हम पैनल डिस्कशन के जरिए इंडस्ट्री से जुड़े दो खास विषयों पर चर्चा आज करेंगे। इज इंडिया रेडी फॉर ग्लोबल रोड ट्रांसपोर्ट प्रैक्टिसेस और रोल ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस। तो संजय जी, मेरा निवेदन है आपसे कि आप इस डिस्कशन सेशन को आगे बढ़ाने के लिए कमान संभालें। Professor Raghuram, may I now request him to start the discussion? From the demand perspective, of course, India is ready, has been ready for quite a while. But if I just turn that around and say from the supply side, are we ready? The answer is an unfortunate no. To address this, say speed, safety, security, stresslessness and sustainability. I mean, these are the elements that we need to worry about to ask ourselves, are we ready for global road transport practices, and how can road transport integrate better in the multimodal transport solutions? If we can take measures to have a seamless movement of trucks on the national highways, I think that will be a very important thing. Today we cannot afford better quality of trucks because we are spending most of the time either standing at the premises of the customer or on the toll nakas. There's a huge lot of need to be considered that where the other modes of transport should get the due what they have not received. Some questions, yes. There is a margin for increased axle loads without endangering public safety or damaging the roads. All the bridges across the country, because they are different combination, different permutations, the span lengths are different. So it is not that, every vehicle, there is a scope that we can have the higher loading. विकास से जुड़े इन बेहद अहम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मैं महिंद्रा ट्रक्स एंड बसेस की तरफ से श्री संजय बंदोपाध्याय और डिस्कशन पैनल में शामिल सभी प्रतिष्ठित सदस्यों का हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूं। नमस्कार, मैं रोहित सरदाना महिंद्रा ट्रांसपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड्स 2014 में आपका स्वागत करता हूं। आज की शाम सम्मानित किए जाएंगे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से जुड़े वो लोग जिन्होंने अपने लाजवाब काम से एक मिसाल कायम की है। Since its inception in 2011, Mahindra Transport Excellence Awards have come to be regarded as a benchmark in the transportation industry, recognizing both the titans and the unsung heroes. We would like to extend a very warm welcome to our chief guest, Mr. Nitin Gadkari, Honorable Minister of Road Transport, Highways and Shipping. साल 2011 में महिंद्रा ट्रांसपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड्स की नींव पड़ी, जो साल दर साल मजबूत होती चली गई। इन अवार्ड्स की शुरुआत में महिंद्रा ट्रक्स एंड बसेस लिमिटेड के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर नलिन मेहता जी ने खास भूमिका निभाई है। अब मैं उन्हीं से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे साथ पिछले कुछ साल में महिंद्रा ट्रांसपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड्स का रिपोर्ट कार्ड शेयर करें। मिस्टर नलिन मेहता। We have really continued with this initiative. We have continued with our resolve to partner the transport industry, and these awards
are based on the Mahindra's Rise philosophy. जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम करते हैं या जिस समाज में हम लोग रहते हैं, उसके लिए कुछ ऐसा करना कि सबका भला हो, आगे बढ़ोतरी हो और सब जगह पे पॉजिटिव चेंज आए। हमारे अवार्ड की फिलॉसफी इस पिलर से सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई है। मिनिस्ट्री लास्ट टाइम रिक्वेस्टेड अस टू स्टार्ट एंड फोकस ऑन सेफ्टी, सो वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अवार्ड्स ऑन सेफ्टी। आपके सहयोग से वी हैव गॉट 2,300 plus entries. Big thing is that the youth transport personality, we are getting about 200 odd entries, and this time we have 300 entries. I'm very happy to report that from 300 last year, we are back to 500 plus entries in the fleet driver. So that's a big change. Ernst & Young are our partners who have followed the most stringent standards in selecting the winners. Thank you very much. Thank you. Thank you. हर मुश्किल को पार करने की जिद, छुपी हुई संभावनाओं को देखने की नजर, एक सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश। यही मकसद है महिंद्रा का। इन्हीं आदर्शों पर चलते हुए वो लगातार आगे बढ़ रही है। महिंद्रा ने साल 2011 में महिंद्रा ट्रांसपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड्स की शुरुआत की। हर नए साल के साथ इन अवार्ड्स का कद भी बढ़ता गया। ट्रांसपोर्टेशन में सुरक्षा की अहमियत को देखते हुए इस साल मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की सलाह पर सेफ्टी अवार्ड कैटेगरी को शामिल किया गया। नई कैटेगरी स्पेयर्स रिटेलर को भी इसका हिस्सा बनाया गया। अवार्ड्स के चौथे साल सबसे अहम एडिशन रहा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अलग अलग कैटेगरीज में विजेता चुनने का काम जूरी के लिए आसान नहीं था। अवार्ड्स की एंट्रीज लगातार साल दर साल बढ़ती जा रही हैं। ये दर्शाता है कि अवार्ड्स अपने आप में बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। In some categories, we have more than 2,000 or 2,500 nominations. In many of the cases, the scores were very, very close to each other. इस पूरे प्रोसेस को पारदर्शिता और प्रामाणिकता दी अर्न्स्ट एंड यंग ने। एक साल के बाद एक बार फिर वक्त आ गया है जब ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अपनी अलग सोच, नया करने के जज्बे और नई ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करने वाली संस्थाओं और चेहरों को महिंद्रा ट्रांसपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड्स 2014 से सम्मानित किया जाएगा। Rise to many, it may just be a simple word, but for the Mahindra Group, it's a philosophy, a driving force, a vision, a clarion call. और इस सोच का आधार है महिंद्रा के 3 राइज पिलर्स: एक्सेप्टिंग नो लिमिट्स, ऑल्टरनेटिव थिंकिंग और ड्राइविंग पॉजिटिव चेंज। इसी को ध्यान में रखते हुए महिंद्रा ट्रक एंड बस डिवीजन ने सारथी अभियान की शुरुआत की। This unique CSR project not only supports truck drivers but their families too. The first phase of Sarthi Abhiyan was launched with a popular and heartwarming scholarship program for the daughters of truck drivers. Scholarships worth rupees 10,000 were awarded to meritorious applicants who completed 10th standard and are pursuing further education. I would now like to invite Mr. Anand Mahindra to kindly come on the stage and tell us more about Rise for Good. We can all rise above our circumstances and achieve our own destinies. यहाँ मौजूद दूसरी महिलाओं को भी बधाई और शुभकामनाएं, because they are the visible symbols of rise. They all come from truck drivers' families and they have struggled to overcome odds, to continue higher education, and I really hope that our scholarship will help to move them towards their dreams. Education is, in fact, the best way for girls to rise, to be independent, to bring joy, to bring knowledge and wealth to their families as well as to the country.
I am really taking the greatest pleasure today to announce that in the future, the immediate future, Mahindra Bus and Truck Division will give out 1,000 more scholarships for the higher education of truck drivers' daughters. While we love supporting girls, of course, I should say कि हमारी Mahindra Truck and Bus Division दूसरों की ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए भी काम करती है. Through these Transport Excellence Awards, we recognize the importance of all people who are part of the transport ecosystem, truck drivers, highway mechanics, and even dhaba owners. So before I request Mr. Nitin Gadkari to speak, we have a small AV to show you on how Mahindra's truck and bus division's Rise for Good works to bring both Lakshmi as well as Saraswati to all the lives that it touches. Thank you. It's rewarding to be the one changing the Indian transport industry. It's rewarding to make trucks that take performance to a whole new level. It's rewarding to be awarded by the best in the business. But there is something even more rewarding. A reward that comes from helping communities in your ecosystem to rise. By going beyond making trucks and partnering with the Indian Institute of Management, Ahmedabad, to create Empower. And then, rewarding the spirit of accepting no limits, exhibited by a brave lady, Yogita Raghuvanshi, the first woman truck driver in India, by honoring her with a Mahindra truck to drive positive change in her life. मेरी यह गाड़ी मेरे एक अच्छे दोस्त की तरह है और मैं इससे अपने सारे सपने जो मैं जॉब में रहकर ना कर सकती थी वो पूरे कर सकती हूँ. By understanding that even good food and other comforts play a great role in transport, and thereby inspiring highway dhabas to excel and truly be a home away from home. By building the lives of those brave soldiers of Indian transport who drive the wheels of the economy, by bringing positive change in the lives of truck drivers, transforming some of them from truck drivers to truck owners overnight. By initiating driver training programs to improve driving techniques, accident avoidance, and healthy living habits. By providing medical safety kits, organizing health checkups and yoga camps for the physical and mental well-being of drivers. And not stopping just at drivers, but also saluting their spirit of pressing on with the higher education of their daughters. पापा जब पहली बार पुणे आए थे तब उनके पास कुछ भी नहीं था. हालत ये थी कि वो पेट्रोल पंप पर ही सोते और खाना खाया करते थे. तभी से उन्होंने ठान लिया था कि भले ही उनके पास कुछ ना हो, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए जरूर कुछ करेंगे. मुझे किसी भी हालत में इंजीनियर बनना है और मैं बन के दिखाऊंगी भी. मैंने ये ठान लिया है और आज मैं वो कर भी रही हूँ. Because the greatest reward is not just making outperforming machines, but to see joy on the faces of everyone connected to Indian transport. The greatest reward is to help people rise. हमें सिर्फ आगे नहीं बढ़ना है बल्कि समाज की हर कड़ी की उन्नति के लिए आगे बढ़ना है ताकि विकास की इस बयार में कोई भी पीछे ना छूट जाए. अब मैं गुजारिश करूंगा माननीय नितिन गडकरी जी से कि वो मंच पर आएं और चंद शब्द करें. सामाजिक दायित्व के भाव से ये अवार्ड देते समय आपने ट्रक ड्राइवर के लड़कियों का भी सम्मान किया और शिक्षा की सुविधा उनको प्राप्त करने के लिए जो मदद की है, इसलिए मैं महिंद्रा मैनेजमेंट को और आनंद महिंद्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं. हमारे देश में 48 लाख किलोमीटर हमारी रोड लेंथ है, उसमें से 1 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे है
और करीब 5 लाख एक्सीडेंट्स होते हैं और उसमें से 40% एक्सीडेंट नेशनल हाईवे पे होते हैं। 1.5 लाख लोगों की हर साल मृत्यु होती है और 3 लाख लोग अपने हाथ पैर गंवा देते हैं। और इसलिए रोड सेफ्टी ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट मिशन है। और इस बार आपने रोड सेफ्टी के बारे में भी हमारे अनुरोध पर अवार्ड रखा है, इसलिए फिर से एक बार मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण काम होगा। हमने ये तय किया है कि हम रोड के एक्सीडेंट की संख्या 50% से कम करेंगे। हम सीमेंट कंक्रीट के रोड बना रहे हैं। हमारी सरकार जब आई तब 2 किलोमीटर पर डे रोड बनते थे। अब इस मार्च एंड में हम लोग 15 किलोमीटर पर डे तक चले जाएंगे। हमारे देश में 22% ड्राइवर का शॉर्टेज है। हमने ड्राइविंग सेंटर शुरू किए हैं और आप भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। हम 1988 को मोटर व्हीकल एक्ट को समाप्त कर रहे हैं। इसी सेशन में नया एक्ट ला रहे हैं और ड्राइवर्स को केवल ड्राइविंग के साथ साथ उसका मनोबल के लिए, जैसे आपने उसको योग विज्ञान की पढ़ाई दी, उसका ठीक प्रकार से काउंसलिंग अगर किया जाएगा तो मुझसे भी लगता है कि इसका उपयोग होगा। अभी हमने नेशनल परमिट जो थे गुड्स एंड पैसेंजर के लिए, उसको ऑनलाइन सर्विस शुरू कर दी है। मेरी तो कोशिश ये है कि कोई आरटीओ ऑफिस में ना आए, आरटीओ ऑफिस ही ना रहे, जो है वो सब इंटरनेट से हो जाए, क्योंकि आपको कितनी तकलीफ होती है, मैं ग्रास रूट पर काम करता हूँ, मैं इसका अनुभव करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद गडकरी जी। अब वक्त आ गया है उस खास अवार्ड सेरेमनी को शुरू करने का जिसके लिए आज शाम हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं। First award for this evening is one of the 2 new awards added this year. हैजर्डस ओडीसी कैटेगरी में एक्सेप्टिंग नो लिमिट्स के राइस पिलर पर चलते हुए रनर अप हैं ग्लोब इकोलॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर राम रतन अग्रवाल जी से कि वो मंच पर आएं और आज की शाम का ये पहला सम्मान स्वीकार करें। And the national winner in this category is Renus Logistics India Private Limited. एक्सेप्टिंग नो लिमिट्स के लिए सेफ्टी हजार्डस कैटेगरी और ओडीसी में आपको महिंद्रा ट्रांसपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड 2014 से सम्मानित किया जाता है। And now the non-hazardous category, the runner-up in the category is Renus Logistics India Private Limited. और इसी कैटेगरी में एक्सेप्टिंग नो लिमिट्स राइस पिलर के लिए नेशनल विनर कौन है, जल्दी से आपको दिखा दूं। श्री दिनेश रोड लाइंस को सेफ्टी नॉन हजार्डस कैटेगरी में महिंद्रा ट्रांसपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड्स 2014 से सम्मानित किया जाता है। हमारी अगली कैटेगरी कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग में ऐसी ही संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने अपने फाइनेंशियल सपोर्ट से सीवी सेगमेंट को आगे बढ़ने में मदद की है। और कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग कैटेगरी में रनर अप कौन है? Axis Bank Limited for the Rice Pillar Driving Positive Change. I would like to call on stage Mr. Umesh Arora, SVP Retail Assets, Axis Bank Limited. और कमर्शियल व्हीकल फाइनेंशियल कैटेगरी में राइस पिलर ऑल्टरनेटिव थिंकिंग के लिए नेशनल विनर है Mr. Pratap Singh, Group Product Head, Commercial Business, ICICI Bank, to kindly come on the stage and receive the award. हाईवेज हमारे देश की लाइफलाइन है और ये लाइफलाइन आराम से चलती रहे, इसके लिए चाहिए हाईवेज के किनारे बने गैरेज और उनके अंदर काम करने वाले मैकेनिक। The winner for Commercial Vehicle Mechanic North is Kali Mistry Motor Garage for the Rice Pillar Driving Positive Change. उत्तर भारत से काले मिस्त्री मोटर गैरेज के श्री रामाधर, वेस्ट जोन से ड्राइविंग पॉजिटिव चेंज के लिए विनर है आफ्ताब मोटर गैरेज। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा आफ्ताब मोटर गैरेज के मालिक आफ्ताब जहूर अंसारी को। The winner for Commercial Vehicle Mechanic South is Mateen Lorry Mechanic Works for the Rice Pillar Driving Positive Change. Mohammad Ahmed to kindly come on the stage and receive the award. और अब वक्त है कमर्शियल व्हीकल मैकेनिक कैटेगरी में नेशनल विनर के बारे में जानने का। पश्चिम बंगाल के नेशनल हाईवे 2 पर बना विश्वकर्मा गैराज
ट्रक ड्राइवर्स की पहली पसंद है। साल 1980 में बने इस गैराज में LCV, HCV और ट्रेलर्स को सटीक तरह से रिपेयर किया जाता है। यहाँ बॉडी और पेंट शॉप, इलेक्ट्रिकल और चेसी रिपेयर की सुविधा दी जाती है। यहाँ इंजन, गियरबॉक्स, एक्सल और सस्पेंशन का भी काम किया जाता है। इतना ही नहीं, गैराज में आने वाली गाड़ियों के अलावा आप 25 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक के इलाकों में भी जाकर गाड़ियों की मरम्मत करते हैं। ड्राइविंग पॉजिटिव चेंज के लिए कमर्शियल व्हीकल मैकेनिक कैटेगरी में आपको महिंद्रा ट्रांसपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड्स 2014 से सम्मानित किया जाता है। और अगली अवार्ड कैटेगरी में हम जिनकी बात करने वाले हैं, मुझे यकीन है कि वो सिर्फ मुझे ही नहीं, आपको भी बहुत पसंद होंगे, क्योंकि मुझे घूमना बहुत पसंद है और जब भी मैं घूमने जाता हूं तो सबसे ज्यादा मजा ढाबों पर अलग अलग तरह के स्वाद चखने में आता है। These are a home away from home for thousands of truck drivers. So this evening we honor 4 such outstanding dhabas. तो सबसे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा नॉर्थ यानी उत्तर भारत से विनर होटल श्री देव नारायण के मालिक रतिराम गुर्जर को। आपको आपकी ऑल्टरनेटिव थिंकिंग के लिए इस कैटेगरी में सम्मानित किया जाता है। Winner for Highway Dhaba East is Shukla Hotel for the Rice Pillar Alternative Thinking. Can we have Mr. Om Prakash Shukla on stage, please? और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा वेस्ट विनर बब्बी द ढाबा के तेजिंदर सिंह को। आपको आपकी ऑल्टरनेटिव थिंकिंग के लिए इस कैटेगरी में सम्मानित किया जाता है। And the national winner for Highway Dhaba is Dashmesh Punjabi Dhaba from South Zone for the Rice Pillar Driving Positive Change. आमतौर पर हाईवे पर बने ढाबे पुरुष चलाते हैं, लेकिन रविंद्र कौर एक महिला होने के बावजूद बड़ी सहजता से इसे चला रहे हैं। इसे रविंद्र कौर की काबिलियत ही कहेंगे कि इस ढाबे में एक दिन में 200 से ज्यादा ट्रक ड्राइवर्स रुकते हैं। 24 घंटे खुले रहने वाले इस ढाबे में एक साथ 100 ट्रक्स खड़े हो सकते हैं। यहाँ वाजिब दाम पर शाकाहारी खाना परोसा जाता है। यहाँ ड्राइवर्स के रुकने, आराम करने और नहाने के साथ साथ ट्रक्स की धुलाई का भी इंतजाम है। किसी ड्राइवर के एक्सीडेंट या बीमार होने पर उसे लोन की जरूरत पड़ती है तो रविंद्र उन्हें 1 लाख रुपए तक का लोन भी देती है। रविंद्र कौर को ड्राइविंग पॉजिटिव चेंज के लिए हाईवे ढाबा कैटेगरी में महिंद्रा ट्रांसपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड्स 2014 से सम्मानित किया जाता है। अब महिलाएं किसी से भी पीछे नहीं हैं, तो भला यहां वो कैसे पीछे रहें। तो रविंद्र कौर जी ऐसी ही मेहनतकश महत्वाकांक्षी महिलाओं की अगुवाई करती हैं और इस पुरुष प्रधान सेक्टर में आपकी उपस्थिति और कामयाबी सबके लिए प्रेरणा है। एक बार फिर से जोरदार तालियां रविंद्र कौर के लिए। So well done, winners. Spares retailers are an essential constituent in the transport ecosystem. इस कैटेगरी में 4 स्पेयर्स रिटेलर्स हैं। शुरुआत करते हैं नॉर्थ से, जहां विनर हैं एक्सेप्टिंग नो लिमिट्स के लिए गंगानगर मोटर्स के मालिक मनीष अग्रवाल। The winner for spares retailer East is Bhardwaj Motors for the Rice Pillar. Now to invite Mr. Rajesh Tiwari. और वेस्ट जोन से स्पेयर्स रिटेलर कैटेगरी में एक्सेप्टिंग नो लिमिट्स के लिए विनर है मैनी मोटर्स। जसप्रीत सिंह मैनी से अनुरोध है कि वो मंच पर आएं और सम्मान स्वीकार करें। And now the winner of the National Award for Spares Retailers. हैदराबाद के ऑटो नगर में बनी श्री वेंकटेश्वरा ऑटो एजेंसीज आपको स्पेयर्स रिटेलर कैटेगरी में महिंद्रा ट्रांसपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड 2014 से सम्मानित किया जाता है। And now we move on to honor those who are quite literally in the driver's seat. जी हाँ, ये अवार्ड उन ड्राइवर्स को समर्पित है जिन्होंने अपने काम से आगे निकलकर कुछ नया करके दिखाया। This category we have 2 runner-up awards, and the first one goes to Mr. Charan Yadav of Globe Ecologistics Private Limited for the Rice Pillar Alternative Thinking. और इसी फ्लीट ड्राइवर कैटेगरी में सेकंड रनर अप हैं ड्राइविंग पॉजिटिव चेंज के लिए श्री दिनेश रोड लाइंस के इंद्रजीत यादव। Our next award is really a big one, the Super Outperformer Driver Award. सुपर आउट परफॉर्मर इस बार एक नहीं बल्कि 2 ड्राइवर्स हैं।
सर्वनम ट्रांसपोर्ट के कुमार स्वामी और थनारसु पी। तो आइए एक नजर डालते हैं जल्दी से इनकी कहानी पर। बदलाव लाने के लिए किसी खास पद की नहीं बल्कि प्रगतिशील सोच की जरूरत होती है। ऐसी ही सोच के धनी हैं सर्वनन ट्रांसपोर्ट में ड्राइवर के तौर पर काम करने वाले कुमारस्वामी आर और थनारसु पी। अपने अनुभव के आधार पर आप दोनों ने देखा कि एक्सल के अत्यधिक भार के चलते ट्रक के माइलेज पर असर पड़ता है। इसलिए आपने कंपनी को एक्सल डिजाइन में बदलाव लाने का सुझाव दिया, जिसमें कि पिछले एक्सल को डमी एक्सल की तरह इस्तेमाल करते हुए एक्सल के डिजाइन को 10x4 की बजाय 10x2 में परिवर्तित कर दिया गया। इससे ट्रक का वजन 400 किलो घट गया। इससे कंपनी को डबल फायदा हुआ। एक तो पिकअप सुधरने से ट्रक का माइलेज बेहतर हो गया, दूसरा टायर्स की लाइफ भी बढ़ गई। ऑल्टरनेटिव थिंकिंग के लिए कुमारस्वामी आर और थनारसु पी को महिंद्रा ट्रांसपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड्स 2014 में सुपर आउट परफॉर्मर ड्राइवर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। बहुत बहुत बधाई मिस्टर कुमारस्वामी आर और मिस्टर थनारसु पी। आप दोनों ने मिलकर जीता है एक ब्रांड न्यू महिंद्रा ट्रक्सो 25 ट्रक। अगर कुछ नया करने की सोच और जज्बा हो तो हर चुनौती छोटी पड़ जाती है। ये हमारे सुपर आउट परफॉर्मर ड्राइवर्स इसी के गवाह हैं। हमने अक्सर देखा है कि एक प्रोफेशन को एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन अपनाती है। पापा डॉक्टर हैं तो काफ़ी संभावना है कि बच्चे भी डॉक्टरी के पेशे में जाएं और इस तरह ये लेगेसी आगे बढ़ती जाती है। But in the transportation industry, the story is a bit different. Here there is a hesitation by the younger generation to carry forward the family business. और इसीलिए महिंद्रा ने फैसला किया कि वो इस तस्वीर को बदलने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित और प्रेरित करेंगे। And now to talk more about the Light of Knowledge initiatives, I would like to call on stage Dr. Pavan Goenka. We saw an opportunity of working with the next gen of our ecosystem and drive positive change by spreading the light of knowledge. Our tie-up with IIM Ahmedabad for the Empower program for youth transporters is now 2 years old. In fact, we launched it in this very event 2 years ago. After the first few Empower programs, many of the participants had gone back and implemented the learnings in their own businesses. And we, as well as the faculty of IIM Ahmedabad, were keen to understand the challenges they had faced for the success they had enjoyed. So we created a program called Empower War Room. This is a business competition for the Empower participants in which they showcase what they have implemented a year after going back from Empower, the issues, the challenges, solutions, and how they actually made change happen. We conducted last July a program called Empower Mentor Summit. As the name tells you, this was a program designed for the doyens of the industry to share their experience and discuss how to take the industry forward. I would like to commit that Mahindra will continue and strengthen these initiatives to drive positive change in the transport ecosystem by spreading the light of knowledge. Thank you very much. मैं अब मंच पर बुलाना चाहूंगा उन लोगों को जिन्होंने इसे साकार करने में अहम भूमिका निभाई। Please put your hands together for Professor Raghuram, Dean of Faculty, IIM Ahmedabad, Professor Debajit Roy, Coordinator of the Empower Program, the inimitable Malika Sarabai, Mr. Rajan Vadhera, and Mr. Nalin Mehta to please come over for the unveil of the Light of Knowledge. May I now request Dr. Goenka to please help spread the light of knowledge.
That was truly inspiring. I thank each one of you and you can kindly take your seats. तो हमारा अगला अवार्ड सेगमेंट है फ्लीट ओनर्स। फ्लीट ओनर्स ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का सबसे मजबूत स्तंभ है। Enduring risks and uncertainties is part of their business, and the individuals who we shall honor now have made a success out of it. तो इस कैटेगरी को 4 सब कैटेगरीज में बांटा गया है। And the runner-up award for Fleet Owner Automotive goes to LTC Logistics Private Limited for the Rice Pillar Driving Positive Change. Can we have Mr. Inder Pal Lal, Managing Director, LTC Logistics Private Limited, on stage, please? और फ्लीट ओनर कैटेगरी में नेशनल विनर कौन है, खुद ही देख लीजिए। गणपति कैरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को ऑटोमोटिव सेगमेंट में महिंद्रा ट्रांसपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड्स 2014 से सम्मानित किया जाता है। और अगली सब कैटेगरी है फ्लीट ओनर ड्राइबल एंड सीमेंट। इस कैटेगरी में रनर अप हैं ड्राइविंग पॉजिटिव चेंज के लिए राजम ट्रांसपोर्ट। And the national winner for Fleet Owner Dry Bulk and Cement is ऑल्टरनेटिव थिंकिंग के लिए अमयप्पर रोडवेज आपको ड्राई बल्क एंड सीमेंट सेगमेंट में महिंद्रा ट्रांसपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड्स 2014 से सम्मानित किया जाता है। And moving on to Fleet Owner Finished Metals, the runner-up is Inland World Logistics Private Limited for the Rice Pillar Alternative Thinking. और फ्लीट ओनर फिनिश्ड मेटल्स कैटेगरी में नेशनल विनर हैं ड्राइविंग पॉजिटिव चेंज के लिए ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। भारत के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट ग्रुप्स में से एक TCI को फिनिश्ड मेटल सेगमेंट में ड्राइविंग पॉजिटिव चेंज के लिए महिंद्रा ट्रांसपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड्स 2014 से सम्मानित किया जाता है। और अब बारी है फ्लीट ओनर ओपन कैटेगरी के रनर अप का नाम अनाउंस करने की। और इस कैटेगरी में रनर अप हैं एक्सेप्टिंग नो लिमिट्स के लिए ग्लोब इकोलॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड। And now the national winner for Fleet Owner Open, and the award goes to Sri Sendriya Perumal Transport and Logistics for the Rice Pillar. ऑल्टरनेटिव थिंकिंग के लिए आपको ओपन सेगमेंट में महिंद्रा ट्रांसपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड्स 2014 से सम्मानित किया जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं इस शाम के आखिरी अवार्ड सेगमेंट पर। Traditionally, this industry has been male-dominated. Harsh working conditions, long days, longer nights on the highways, unpredictable conditions, all these make the transportation industry particularly tough one for women. लेकिन कुछ महिलाएं इन सख्त परिस्थितियों से भी सख्त हैं। और इस साल लेडी ट्रांसपोर्ट पर्सनैलिटी कैटेगरी में रनर अप हैं ऑल्टरनेटिव थिंकिंग के लिए रेशमा दुआ। And now for the lady who is truly an out-performer, who is truly a shining example of self-belief and the will to succeed against all odds. हम चाहते हैं पहले योगिता रघुवंशी जी हमारे साथ यहाँ मंच पर आएं। The national winner for Lady Transport Personality of the Year is Mrs. Hema Prava Devi, the proprietor of Mukti Petrochem. कुछ नया करने की चाह हो तो झिझक अपने आप किनारा कर लेती है। ऐसी ही हिम्मत दिखाने वाली महिला है हेमा प्रभा देवी, जिन्होंने 1998 में मुक्ति पेट्रोकेम की नींव रखी। हेमा अपने बिजनेस को न सिर्फ अकेले हैंडल कर रही हैं, बल्कि लगातार बढ़ा भी रही हैं। ऑन टाइम डिलीवरी आपके लिए सबसे जरूरी है, जिसे इंश्योर करने के लिए आपने एन रूट लोगों से टाई अप भी किया, ताकि इमरजेंसी के वक्त वो काम आ सके। ये आपके अपनेपन का नतीजा ही है कि आपकी कंपनी में कभी ड्राइवरों की कमी नहीं होती। अपने आसपास की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपने साल 2014 में एक छोटी सी पीवीसी सील मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी शुरू की। हेमा प्रभा देवी को ड्राइविंग पॉजिटिव चेंज के लिए महिंद्रा ट्रांसपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड्स 2014 में लेडी ट्रांसपोर्ट पर्सनालिटी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। The success of any industry and also the country rests on the shoulders of the youth. They bear the promise of the future. ये युवा अपने अलग नजरिए, ग्लोबल ट्रेंड्स की समझ और उन्नत सोच की मदद से भविष्य में ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को एक अलग मकाम तक लेकर जाएंगे।
And it's time to announce the Youth Transport Personality of the Year runner-up, and it is Mr. S. Nitesh Shankar, Managing Director, Bharat Swift Logistics Private Limited, for the Rice Pillar, Alternative Thinking. और आपको बता दें, यूथ ट्रांसपोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2014 के नेशनल विनर हैं कपूर डीजल्स गैरेज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर विक्रांत कपूर। कपूर डीजल्स गैराज प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ विक्रांत कपूर ने भी कंपनी की कमान संभालते ही अपनी अच्छी प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन की मदद से उसे नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। आज कंपनी की फ्लीट में 500 से ज्यादा ट्रक्स हैं। डिलीवरी प्रॉमिस के कमिटमेंट को पूरा करने के लिए आपने एक्सप्रेस डिलीवरी सर्विस की शुरुआत की और लंबी दूरी पर 2 ड्राइवर भेजने जैसे कदम उठाए। कंसाइनमेंट की सेफ्टी के लिए आपने स्मार्ट लॉकिंग सिस्टम, फुल बॉडी कंटेनर और जीपीएस ट्रैकिंग जैसे कदम उठाए। आप अपने एम्प्लॉयज को परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव देते हैं और उनकी अच्छी सेहत के लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप कैंप्स भी लगवाते हैं। विक्रांत कपूर को ऑल्टरनेटिव थिंकिंग के लिए यूथ ट्रांसपोर्ट पर्सनालिटी कैटेगरी में महिंद्रा ट्रांसपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड्स 2014 से सम्मानित किया जाता है। श्री राजन वडेरा, चीफ एग्जीक्यूटिव ट्रक पावर ट्रेन डिवीजन और हेड एमआरवी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, अब वो आपके सामने आगे की कुछ बात रखेंगे। Road transport really has come a very long way indeed. And it's the spirit of this outperformance and excellence that we celebrate through the Mahindra Transport Excellence Awards. We will continue to invest in the betterment of the transport ecosystem of our country. Going forward, we are going to focus very heavily on training drivers and on very good driving techniques. Friends, in every business, there are few individuals who leave their mark, who leave it for generations to come. They set benchmarks which others seek to emulate. And with the intent of recognizing the accomplishments of such role models, we have instituted this new award, which, friends, we are calling the Award for Lifetime Achievement. I would like to invite Dr. Goenka to walk up and open the envelope to reveal the name of the first ever recipient of the Lifetime Achievement Award and also present the citation. This evening, we shall indeed honor one such idol from the world of transportation. He has been associated with the transport industry for more than 43 years. In these long and fruitful years, he's relentlessly toiled in developing the unorganized logistics sector into an organized one. Unfortunately, because of some last-minute change, he could not be here today, and therefore I invite his son to come on stage. The winner of the Lifetime Achievement Award is Mr. D.P. Agrawal, the Vice Chairman and Managing Director of Transport Corporation of India Limited. साल 1958 में सिर्फ एक ट्रक से शुरुआत करने वाली कंपनी के मालिक डीपी अग्रवाल की दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि आज कंपनी के पास खुद के 700 से ज्यादा HCV ट्रक्स हैं और हर दिन वो 5000 से ज्यादा ट्रक्स को मैनेज करते हैं। आपने इस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए कई अहम कदम उठाए, जिनमें कोर ऑपरेशंस चलाने के लिए प्रोफेशनल्स को हायर करना और मार्केट से इक्विटी पार्टिसिपेशन को अट्रैक्ट करना शामिल है। रोड ट्रांसपोर्टेशन में नई तकनीक का विकास करने वाले लोगों में आपका नाम उल्लेखनीय है। साल 1998 में TCI ने रोड फ्रेट इंडेक्स की शुरुआत की। आपने लिक्विड ट्रांसपोर्टेशन के लिए खास कोलैप्सिबल कंटेनर्स बनवाए। बाइक, स्कूटर और 3 व्हीलर्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए तैयार किया गया 3 डेक डिजाइन ट्रक मॉडल भी आपका पेटेंट है। आपने ड्राइवर्स और उनके परिवार के उत्थान के लिए TCI फाउंडेशन बनाए। ड्राइवर्स की बेहतरी के लिए उठाए गए आपके कदम वाकई काबिले तारीफ है। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में श्री DP अग्रवाल के अमूल्य योगदान के लिए उन्हें महिंद्रा ट्रांसपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड्स 2014 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। Wow, what an evening. So let's have a resounding round of applause for all the winners once again.
Mr. Vadera, over to you now. The friends from the transport industry, our esteemed guests and members of the grand jury and the expert juries, ladies and gentlemen, Mr. Anand Mahindra, Chairman, Dr. Pawan Goenka, I thank each one of you for having taken the time and the efforts to be here today with us to celebrate the heroes and, I should say, the heroines of the Indian transport industry. I look forward to seeing you next year for Mahindra Transport Excellence Award 2015, and thank you very much for being here with us today. Thank you once again. मेरा अनुरोध है सभी विजेताओं से कि वो कृपया मंच पर आएं और इस खूबसूरत शाम को यादगार बनाने के लिए एक ग्रुप फोटोग्राफ का हिस्सा बने। खून पसीने में बिताए hours of devotion, ताकि कांटे राह तेरी राहों में, सपने बुने, every night, every day. ट्रांसपोर्टर को उत्साहित करना, रिकग्नाइज करना, और इससे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा सोसाइटी में, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में। लोग एक दूसरे को देखेंगे, समझेंगे। महिंद्रा कंपनी को प्रणाम करता हूं और इसको चेष्टा करूंगा कि और आगे बढ़े। मैं बहुत खुश हूँ, ये मेरे को एनकरेज किया महिंद्रा वालों ने, मैं और भी आगे बेटर काम करूँगी। अच्छा लग रहा है ये ऐसा करने में, हमारा भी इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएगा। महिंद्रा बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। वो लोग ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उनको उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उनको अवार्ड दे रहे हैं। दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब। आज हमारी मेहनत का ये फल है। आज तक हम काम करते थे, बट अवार्ड मिलने के बाद मैं महसूस किया हम जो काम कर रहे थे वो सही कर रहे थे, और हम यहाँ नहीं, हम आगे भी बढ़ेंगे। Mahindra has promoted a lot to us, to youth entrepreneur to come into this industry and take this industry in a very big level, and we are really interested to bring this industry in a very big level. हम लोगों का सेक्टर में लेडी टू सूस नहीं करता है ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस, इसके लिए बहुत एनकरेजिंग प्रोग्राम है ये। जो महिंद्रा ने करके दिखाया है उससे हमें तो बहुत ही अच्छा लगा है। प्लस एक नई वेव चल रही है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को एक नया कैटेगराइजेशन अच्छी मिलेगी और एक अच्छा स्टेटस मिलेगा जो आज तक नहीं मिल रहा था। It's an honor and privilege, and I think Mahindra actually understands what logistics is all about.